So, good evening class. Let's start our today's topic. Today we will do few current affairs and after that we will do our next topic. So, first let's start with current affairs. लास्ट वाले कल वाले टॉपिक आपने रिवाइज किए? क्लास आई एम आस्किंग यू समथिंग. कल वाला टॉपिक पूछूं आपसे कुछ क्वेश्चंस? रिवाइज है आपको? No, ma'am. Okay, you don't revise. Why you don't revise? आपको रिवाइज नहीं है? Why? What is the reason? Can I know reason? क्या रीजन है? Why you can't revise? चलिए आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको कल होमवर्क दिया था Sea of Marmara type questions, Bosporus Strait. Have you gone through that? Yes, ma'am. Okay. Tell me where is Bosporus Strait and it connects which of the two seas? Bosporus Strait is a narrow waterway in northwest Turkey, and it connects two seas. The one is the Sea of Marmara and the Black Sea. Okay, good. What are the surrounding countries of Black Sea? Ma'am, they are Romania, Ukraine, and Turkey. Yeah. Yes, ma'am. Okay. So you want me to get revised with the topic? You want I should first go you through these topics or otherwise we will go through? Like you want अगर मैं Black Sea का करवाऊँ आपको आज और otherwise you are okay with this? करना है Black Sea वाला portion firstly? No, ma'am. आपने तो Black Sea, ma'am, we have done. you are done but others they are not replying ना. I'm talking about other kids. Class, do you want Black Sea वाला portion करवाएं आपको आज or not? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. First day है जी आज. Okay, your first day. Okay. You're preparing for which exam? Sorry, ma'am. You're preparing for which exam? Judicially. Okay, judiciary. Okay, now you can see surrounding countries of Black Sea. Okay, these are the surrounding countries of Black Sea: Turkey, Bulgaria, Romania, Ukraine, and Russia, and Georgia. These are the 5 countries of which sea? Black Sea. Black Sea is a landlocked sea. And this is what? This is Bosporus Strait, which connects Sea of Marmara and Black Sea, and which connects this is the Dardanelles Strait, which connects Aegean Sea, that is the part of Mediterranean Sea, and Sea of Marmara. Okay, this is Dardanelles Strait, this is Bosporus Strait, and these are the surrounding countries of Black Sea. Understand? Yes, ma'am. Okay. Let's start our topic.
Today first we will do current affair. Okay, that is smoke towers. We will start our class from smoke towers. This is a current affair. स्मोक टॉवर्स क्या होते हैं? व्हाट आर स्मोक टॉवर्स? सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली पंजाब, हरियाणा एंड यूपी को बोला है कि जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है उसको स्टॉप किया जाए. जो फार्म्स में स्टबल बर्निंग, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज स्टबल बर्निंग? मैम वॉइस आ रही है, आपका सुन नहीं आ रही. हाँ जी, पीछे कोई वॉइस आ रही है, आपकी बात साफ नहीं आ रही. ओके ओके, वॉइस बहुत ज्यादा पीछे कोई बैकग्राउंड. जस्ट अ मिनट. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा एंड यूपी को बोला है टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ स्टबल बर्निंग ऑन फार्म्स which control air pollution in Delhi at the beginning of every winter. Okay. Bench has directed the authorities to take measures including asking the Delhi government and Central Pollution Control Board. Can anyone tell me what is Central Pollution Control Board? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या होता है? एज इट्स नेम सजेस्ट, कोई बता सकता है व्हाट इट इज? इसका फंक्शन क्या है? कब ये फॉर्म हुआ? I have no idea when would it be formed. It was formed in the year of 1974. It was formed under the Water Pollution Act, and it is also acting powers under the Air Pollution Act. Means to say इसका पर्पस क्या है? फंक्शंस परफॉर्म करना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिलेटेड. ओके. इसका स्टेट लेवल पे भी एक होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो स्टेट में फंक्शंस करता है. एंड सेंट्रल वाला जो होता है सेंटर लेवल पे, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में होता है, दिल्ली से फंक्शनिंग करता है, ऑल ओवर इंडिया में फंक्शन करता है. ये किस एक्ट के अंडर, किस लॉ के अंडर फॉर्म हुआ? इट वाज फॉर्म्ड अंडर वाटर पोल्यूशन एक्ट, एंड ये पार्ट स्टेट पोल्यूशन एक्ट के अंडर भी परफॉर्म कर रहा है. व्हाट इज स्मोक टॉवर? अभी स्मोक टॉवर पे चलते हैं. एग्जैक्टली है क्या स्मोक टॉवर? स्मोक टॉवर एक स्ट्रक्चर होगा, एक टॉवर टाइप होगा, एक लार्ज स्केल एयर प्यूरिफायर होगा, जिसका फंक्शन क्या होगा? मल्टीपल लेयर्स जिसमें क्या होंगी? फिल्टर्स की, फॉर द पर्पस जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करके प्योरीफाई करे. फिल्टर का काम करेगा ये एयर में. अंडरस्टैंड? What is stubble burning? स्टबल बर्निंग जैसे हमारे खेतों में नहीं होता, जैसे हमने मतलब हार्वेस्टिंग कर ली, उसके बाद जो वेस्ट रह गया उसको आग लगा देते हैं. पोल्यूशन नहीं होता दिल्ली में विंटर टाइम, विंटर की स्टार्टिंग में एवरी ईयर दिवाली से पहले, एंड फिर दिवाली वाले क्रैकर्स वाला हो जाता है, एंड इट क्रिएट्स लॉट ऑफ पोल्यूशन इन नेशनल कैपिटल. स्टबल बर्निंग समझ गए ना? जो पोल्यूशन होता है, जो उसके हार्वेस्टिंग के बाद जो वेस्ट होता है उसको आग लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टबल बर्निंग. ओके. Yes, ma'am. स्मोक टॉवर क्या है? ये एक टॉवर्स होंगे
जो लार्ज स्केल एयर प्योरीफायर का काम करेंगे एंड जिसमें मल्टीपल लेयर्स फिल्टर्स की होंगी, जो क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे डस्ट पार्टिकल्स को एयर के थ्रू, मतलब एज अ एयर को फिल्ट्रेट करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दिल्ली गवर्नमेंट को एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को है कि अपना अपना प्लान दो, आप अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दो सो दैट हम स्मोक टॉवर्स को सेटिंग अप के लिए काम कर सकें। ठीक है जी। अंडरस्टैंड? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? नो मैम। ओके, स्टबल बर्निंग क्लियर हो गया ना? यस मैम। ओके, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस एक्ट के अंडर, किस लॉ के अंडर फॉर्म हो रहा है? आर यू क्लियर विद दिस? कोई बता सकता है मुझे? मैंने अभी आपको It is formed under the Water Pollution Act. okay, and it is also functioning powers under which act? It's working under Water Pollution Act, and it's also performing its powers under which act? Air Pollution Act. Okay, and किस ईयर में फॉर्म हुआ ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? नाइनटीन 1974। गुड। चलिए हम स्मोक टॉवर की बात करते हैं। स्मोक टॉवर क्या होते हैं? जो प्योरीफायर होंगे, लार्ज स्केल प्योरीफायर्स, जैसे वाटर प्योरीफायर होता है, सेम इज द केस बड़े बड़े टॉवर्स होंगे जो नेशनल कैपिटल में लगाने की बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफर किया है टू द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड दिल्ली गवर्नमेंट को कि आप अपना प्लान लेके आओ फॉर द सेटिंग अप दिस स्मोक टॉवर्स, एंड मल्टीपल लेयर्स ऑफ फिल्टर्स के साथ फिटेड होंगे। ये डस्ट पार्टिकल्स को क्या करेंगे? ट्रैप करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। लार्ज स्केल फिल्टर्स ने विच आर एक्सपेक्टेड टू बी इंस्टॉल्ड, दे विल यूज कार्बन नैनो फाइबर्स। कार्बन नैनो फाइबर्स बता सकते हो क्या होते हैं? नैनो, नैनो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नैनो मीन्स क्या होता है? कोई बता सकता है? नैनो, नैनो फाइबर्स। Very small. वेरी गुड, वेरी स्मॉल। कार्बन नैनो फाइबर्स यूज करेंगे। स्मॉल स्मॉल जो फाइबर्स हैं कार्बन के, वो यूज करेंगे एज अ मेजर कंपोनेंट। ओके, एंड हाइट ऑफ द टॉवर्स कितनी होगी? 20 मीटर्स वगैरह की होगी। एंड ये टॉवर्स एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं किन कंट्रीज में? नीदरलैंड में, चाइना में, साउथ कोरिया में एंड पोलैंड। दीज आर द 4 कंट्रीज यहाँ पे यो स्मोक टॉवर्स एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं रिसेंट ईयर्स में। ओके, फर्स्ट टॉवर कहाँ लगाया गया था? फर्स्ट टॉवर लगाया गया था 2015 में रोटरडैम। रोटरडैम कहाँ है? Netherlands. नीदरलैंड। रोटरडैम में लगाया गया था रिसेंटली फर्स्ट सच टॉवर, एंड ये टॉवर्स इंस्टॉल हो रहे हैं। कोलैबोरेशन किसकी किसकी होगी इंडिया में? मुंबई एंड दिल्ली आईआईटीज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा। मिनीसोटा कहाँ है? आई एम गिविंग यू क्लू, ये कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री में यूनिवर्सिटी है, एक स्टेट है, एक सिटी है। बता सकता है कोई? नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज है बताइए? 3 कंट्रीज है नॉर्थ अमेरिका में। ओटावा किसकी कैपिटल है? कोई बता सकता है? वॉशिंगटन डीसी किसकी कैपिटल है?
आई एम गिविंग यू अ वेरी बिग क्लू. वॉशिंगटन डीसी किसकी कैपिटल है? वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ विच? एंड ओटावा, बताइए. Ottawa is of Canada. कनाडा, वेरी गुड. तो नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं. कौन कौन सी हैं? एक कनाडा, देन नेक्स्ट सेकंड कौन सी है जिसकी वॉशिंगटन डीसी है कैपिटल? यूएसए. एंड थर्ड इज मैक्सिको. दीज आर द 3 कंट्रीज. ये मिनीसोटा यूनिवर्सिटी कहाँ की है? यूएस की है. ओके. नेक्स्ट इन्होंने जो यूनिवर्सिटी ने कहाँ लगाया? चाइनीज सिटी है जियान, वहाँ पे एक परमानेंट स्मोक टावर रिसेंटली लगाया है. 2017 में कंप्लीट किया है इन्होंने अपना प्रोजेक्ट. इसीलिए इंडिया में भी इनको कोलैबोरेट करने के लिए बोला गया है. नेक्स्ट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? No, ma'am. ये वॉशिंगटन डीसी किस कंट्री की कैपिटल है? हमने किया था, आप भूल कैसे गए? नेक्स्ट, क्या ये इफेक्टिव होंगे टावर्स? क्या इनका पर्पस क्या होगा? क्या काम करेंगे? ये एक क्लीन एयर जोन, जो अपने नेशनल कैपिटल रीजन है वहाँ पे क्लीन एयर जोन बनाएंगे. ओके. पर्टिकुलेट मैटर है जो रिड्यूस करेंगे उसका लोड. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am, understood. ओके. नेक्स्ट राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र. राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र कोई बता सकता है? स्वच्छ मिशन इंडिया में चल रहा है, तो ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र एक इंटरेक्टिव जो एक्सपीरियंस सेंटर होगा स्वच्छ भारत मिशन का. स्वच्छ भारत मिशन क्या है? Clean India Mission. क्लीन इंडिया मिशन. ओके. ये अपना राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है. इट विल इंट्रोड्यूस फ्यूचर जनरेशंस टू इट्स सक्सेसफुल जर्नी एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिहेवियरल चेंज कैंपेन. ये लोगों को, फ्यूचर जनरेशंस को इंट्रोड्यूस करेगा सो दैट वो फ्यूचर जनरेशन सक्सेसफुल जर्नी की तरफ जा पाए. जो लार्जेस्ट बिहेवियर चेंज, हमने बिहेवियर चेंज करेंगे तभी इंडिया स्वच्छ बन पाएगा. बिहेवियर चेंज इज द मेन थिंग जो हमें स्वच्छ बनाने में हेल्पफुल होगी. ये इंडिया के जो इसके अपने मिशन के, स्वच्छ भारत मिशन के एलिमेंट्स को शोकेस करेगा, शो करेगा एंड एनेक्डोट्स बनाएगा. अपनी जर्नी पे एनेक्डोट्स शो करेगा सत्याग्रह से लेके स्वच्छताग्रह तक. सत्याग्रह किसका मिशन था? सत्याग्रह किस अपने इंडियन लीडर के साथ रिलेट कर रहे हैं? Mahatma Gandhi. गुड. एंड ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र क्या होंगे? केंद्र्स होंगे जिनमें आपको एजुकेशन मिलेगी, स्वच्छता के रिलेटेड, सैनिटेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, अवेयरनेस होगी. ओके. What are anecdotes? एनेक्डोट्स होती हैं जैसे स्टोरीज. जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने ये स्टोरी की, किसी विलेज के लोगों ने ये किया और उनका विलेज स्वच्छ हो गया. लाइक दिस एनेक्डोट्स होती है स्टोरीज, किसी की रियल स्टोरी. Ma'am, and what does the term experience center mean here? That RSK is an interactive experience center. इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर, जहाँ पे आप जाके एक्सपीरियंस करोगे. आपके एरिया में एक एक्सपीरियंस सेंटर टाइप बनाया जाएगा आपको, सब लोगों को इनकरेज करने के लिए कि उस एरिया में ये किया गया. इंटरेक्शन होगी, जो वहाँ पे स्टाफ होगा वो आपको बताएगा किसी और एरिया की स्टोरी. जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन टेक कि ये हरियाणा में ये विलेज में ये किया गया, इसी वजह से इतना उनका डिसीज रेट कम हो गया. लाइक दिस उनको स्टोरीज बताई जाएंगी, एक्सपीरियंस कर पाए लोग, चेंज फील कर पाए और खुद में अपने आप में एक चेंज लेके आए, सो दैट स्वच्छ भारत मिशन सफल हो पाए, सक्सेसफुल हो पाए. ओके. Yes, ma'am. नेक्स्ट, सुरक्षा. ये क्या है? एक
नेशनल पोर्टल है किस पे, ह्यूमन एंड एनिमल की कन्फ्लिक्ट पे। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था ह्यूमन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट के रिलेटेड, ह्यूमन एंड एलिफेंट की कन्फ्लिक्ट के रिलेटेड, जो काफी न्यूज में भी आया था। किस स्टेट का इंसिडेंट था वो? केरला। केरला, वेरी गुड, केरला का इंसिडेंट था। एंड वहाँ पे एलिफेंट वगैरह को उनके साथ वो किया गया था, कुछ क्रैकर्स वगैरह का केस था। एंड ह्यूमन एलिफेंट की कन्फ्लिक्ट के लिए ही प्रोटेक्ट करने के मोटिव के साथ ये पोर्टल बनाया गया है। इसमें क्या होगा, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड ये मैनेज कर पाएगा कन्फ्लिक्ट्स जो हो रही हैं रियल टाइम बेसिस पे सोसाइटी में। उनका एक डाटा होएगा सो दैट लोगों को बताया जा सके कि इस एरिया में ऐसे इफेक्ट्स हो रहे हैं, ऐसे जो कन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, सो दैट वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, कुछ प्रोहिबिशन के लिए काम किया जा सके, उनकी प्रिवेंट किया जा सके। ओके, नेशनल पोर्टल समझते हैं? कोई बता सकता है नेशनल पोर्टल क्या होता है? जैसे उस दिन हमने किया था माय गवर्नमेंट वाला, वो भी एक पोर्टल है, mygovernment.in, वो वाला मैंने आपको बताया था। किसी ने चेक किया था माय गवर्नमेंट वाला ऐप? यस किया था चेक। क्या है ये माय गवर्नमेंट वाला, बताइए। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था व्हाट इज माय गवर्नमेंट ऐप और माय गवर्नमेंट ऐप ए पेजेस वगैरह एवरीथिंग। जो कोई बताइए प्लीज, माय गवर्नमेंट हमने किया है लास्ट लेक्चर्स में। Yes, ma'am. It was launched in 2014, ओके, and some websites are also there. ओके, व्हाट इज इट एक्चुअली, इसका मोटिव क्या है? सोशल मीडिया पे इसके पेजेस हैं, एप्स हैं, लाइक इसका मोटिव क्या है? सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, सो दैट सिटीजन्स को गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल पाए कि एक्चुअल में गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स क्या हैं, पार्टनरशिप बिल्ड करने के लिए। ठीक है जी, सिटीजन्स की पार्टनरशिप बिल्ड करने के लिए विद द गवर्नमेंट, गवर्नेंस को इजी करने के लिए विद द मोटिव ऑफ प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, ये माय गवर्नमेंट ऐप लाया गया, माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म लाया गया, सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, सो दैट सिटीजन्स की इंगेजमेंट को इंश्योर किया जा सके। जो सिटीजन्स को गवर्नमेंट की स्कीम्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल पाए कि गवर्नमेंट क्या लेके आ रही है, क्या गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उसके रिलेटेड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है जो सिटीजन्स को मिल पाए। दैट इज द प्लेटफॉर्म, Okay, ma'am. that is the platform which we call it my government. Okay, so today we will do this first in world miscellaneous portion. So tell me, which is the first country to make a constitution? वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री कौन सी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आई? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, कब इन्फोर्स किया गया? 1950. 1950 में इन्फोर्स किया गया, ठीक है जी। उसके बाद ये वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री कहाँ कौन सी है जो कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट लेके आई थी? 1700 की सीरीज में आया था उनका, 1700 समथिंग, एंड वो अभी हम कर चुके हैं उसके रिलेटेड लेक्चर्स में अपने, अभी डिस्कशन भी हो चुकी है। मैम यूके इंग्लैंड। नहीं नहीं नहीं, इट्स यूएसए, इट्स यूएसए। यूएसए अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लेके आई थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का यूएसए का लेके आए थे।
यूके का तो बाद में आया था ना, फर्स्ट 1700 में 1776 के अराउंड आया था ये यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट लोकपाल? लोकपाल क्या होता है? लोकपाल मीन्स टू से, क्या करेगा लोकपाल? ये करप्शन के साथ डील करता है। किस लेवल पे करप्शन के साथ डील कर रहा है? जैसे सेंटर में होता है लोकपाल एंड स्टेट में लोकयुक्ता होता है। एक इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, इसका कोई पर्पस बताएगा? Freedom. करप्शन के साथ डील कर रहा है ये। किस लेवल पे करप्शन को चेक करेगा? World level. मिनिस्टर्स के लेवल पे, Ma'am, no idea about this. गवर्नमेंट के लेवल पे, मिनिस्ट्री के लेवल पे करप्शन को चेक करेगा। ओके, लोकपाल का समझ आ गया ना अभी? लोकपाल विल चेक द करप्शन जो अपने सेंटर लेवल पे, पीएम के लेवल पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लेवल पे जब कोई इशू आता है, देन ही विल चेक दैट इशू। लोकपाल की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? लोकपाल विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। एंड स्टेट्स में क्या आएगा? ये लोकयुक्ता। What, ma'am? लोकयुक्ता, लोकयुक्ता, LOK, लोकयुक्ता, YUKTA, लोकयुक्ता। ओके, 2013 में लॉ पास हुआ था, दैट इज लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट, जिसके अंडर एक इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे गया है इनकी पोजीशंस को। लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट 2013 लॉ पास हुआ था, जिसके थ्रू इनकी अपॉइंटमेंट्स हो रही है। अंडरस्टैंड? अभी लोकपाल का समझ आ गया कंसेप्ट? Yes, ma'am. ओके, नाउ टेल मी विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट लोकपाल? Ma'am, no idea about this. ओके, ये अपनी मीटिंग का टाइम ओवर होने वाला है, जस्ट 5 minutes आर लेफ्ट। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अनदर मीटिंग। मैं आपको कोड सेंड कर दूंगी। 5 minutes रह गए। Okay, ma'am. Okay. ओके, द फर्स्ट कंट्री वाज, एस से स्टार्ट हो रहा है नेम इसका, यूरोप में है। Switzerland. क्या? इट्स स्वीडन। ओके, so next question is first country to ban capital punishment। अभी पहले कैपिटल पनिशमेंट पे बात कर लेते हैं। कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है? कोई बता सकता है कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है? किसी को कोई आइडिया हो व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट? No, ma'am. डेथ। हाँ जी, डेथ पेनल्टी के रिलेटेड सुना है? डेथ पेनल्टी क्या होती है? That in case someone don't repay the debt, he gets a penalty, something like that. क्या हुआ? रिपीट कीजिए प्लीज, समझ नहीं आया क्या बोला है। No, ma'am, nothing. नहीं नहीं, बताइए, ठीक बोल रहे थे आई थिंक आप, बताइए तो सही, मुझे समझ नहीं आया नेटवर्क का इशू के कारण। Ma'am, I guess that debt penalty, as you're saying, is suppose if a person doesn't repay the debt, so he is penalized for not repaying the debt in
in some tenure which has been given by the bank. नहीं ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट बैंकिंग, जस्ट डेथ पेनल्टी, ठीक है आप उसके रिलेटेड भी बोल रहे हो, बट डेथ पेनल्टी सिंपली क्या होती है, जैसे मर्डर के लिए मिलती है डेथ पेनल्टी, एक्सेप्शनल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में मिलती है, जैसे लॉ के अंडर पिनल कोड के अंडर प्रोवाइडेड है, दैट इज कैपिटल पनिशमेंट को क्या कहते हैं, डेथ पेनल्टी। ओके, एंड विच इज द फर्स्ट कंट्री टू बैन इसको कैपिटल पनिशमेंट, किसी के पास कोई आइडिया हो? इट्स नेम स्टार्ट विद वी, इट्स नेम स्टार्ट विद वी, वी फॉर वैन वाला वी। Venezuela. वेरी गुड, वेनेजुएला, वेरी गुड, ठीक है जी। नेक्स्ट, फर्स्ट कंट्री टू गिव वोटिंग राइट्स टू वुमेन, Finland. विच कंट्री गिव वोटिंग राइट्स टू वुमेन? क्या? Finland, I think, ma'am. नहीं नहीं, इट्स न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की लोकेशन पता है आपको कहाँ है? न्यूजीलैंड की लोकेशन कहाँ है, कोई बता सकता है? किस कंट्री के पास है न्यूजीलैंड? हाँ जी बताइए। ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया के पास, वेरी गुड। नेक्स्ट, फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज कार्बन टैक्स। Ma'am, what is its capital? Capital of New Zealand? न्यूजीलैंड की कैपिटल, किसी के पास कोई आइडिया है? Yes, बता ma'am. सकता है कोई? बताइए कोई, किसी के पास कोई आइडिया हो? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड? ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? Canberra. कैनबेरा, वेरी गुड। तो न्यूजीलैंड की कौन सी है? किसी के पास कोई आइडिया नहीं? No, ma'am. वेलिंगटन, वेलिंगटन, मैम very ऑकलैंड, good। वेलिंगटन, 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 हाँ जी वेलिंगटन, यस। अभी मुझे ये बताइए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन सी कंट्रीज के थ्रू पास हो रही है? Australia, हाँ जी, then Argentina, अर्जेंटीना, देन और बताइए ये, ठीक है आप अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं, ठीक है, अभी साउथ अमेरिका की और कौन कौन सी कंट्रीज हैं? एक तो बी से स्टार्ट हो रहा है नेम, Bolivia, बोलीविया, नहीं बोलीविया से नहीं होती, एक और है बोलीविया के पास ही है कंट्री, कौन सी है वो? बी से स्टार्ट हो रही है। बोलीविया से थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है, बोलीविया के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं पास होती। बी आर ए क्या हुआ ये? ब्राजील, Brazil, हाँ जी ब्राजील। देन उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है? पैराग्वे। देन उसके बाद अपनी मदागास्कर आ गया अफ्रीका का, देन उसके नाम्बिया आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया,